عزیزوں و دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج میں سیرت سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے اگلے حصے کی طرف لے چل رہا ہوں۔ تو حضرات، اس کا ٹائٹل ہے معراج کی گھٹنا اور کمزور مسلمان۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: برائی کا جواب بھلائی سے دو، پھر اچانک تم میں اور جس وقت میں دشمنی تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی گرتا جگری دوست۔ اندھیرے جب گھیر لے تو ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ بیزار دلوں میں اسلام کو کیسے بسایا جانا چاہیے؟ قرآن کی یہ آیت انہی سوالوں کا جواب ہے۔ اللہ کہتا ہے، اے نبی، ایسے نازک وقت میں آپ کو بڑی ہوشیاری اور سوجھ بوجھ سے کام کرنا ہے۔ دشمنوں سے بات کیجئے تو بڑے میٹھے انداز میں، اعتراضوں کا جواب دیجئے تو بڑے ہی اچھے انداز میں، کسی کو کچھ سمجھائیے تو بڑے پریم بھاؤ سے، اگر وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تو صبر سے کام لے، کیونکہ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ بہت سے لوگ عقل کے کورے تھے، دل ان کے اندھے تھے اور سوجھ بوجھ سے وہ بالکل محروم تھے۔ اسی لیے معراج کی حیرت ناک گھٹنا سن کر یہ لوگ اللہ کی حکمت کو نہ سمجھ سکے اور شیطان کے پھندے میں آ کر دین کا وروध کرنے لگے۔ اس سے مسلمانوں کا بڑا دکھ پہنچا، کنتو مشرکوں کے ہاتھ مضبوط ہو گئے اور دماغ آسمان پر جا پہنچے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کا کھلا اعلان طے کر لیا کہ کسی کے ساتھ ذرا بھی رعایت نہ کریں گے، مسلمانوں سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے، انہیں گھیر گھیر کر ستاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھبرا کر محمد کا ساتھ چھوڑ دیں اور ان کے سندیش اور شکشاؤں سے بیزار ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ساری تکلیفیں جھیلتے رہے اور جواب میں ہمیشہ بھلائی کا نمونہ بنے رہے۔ عرب کے 3 بہت مشہور بازار عکاظ، مجنہ اور ذی المجاز تھے۔ حاجی لوگ ہر سال مکہ آنے سے پہلے ان بازاروں میں جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہنچتے، ان سے ملاقاتیں کرتے اور مینا اور عقبہ جاتے ہوئے حاجیوں کے قافلے جہاں ٹھہرتے، آپ وہاں جا کر ان سے ملتے، ان کو دین کا پیغام سناتے، قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پیش کرتے۔ ان آیتوں میں شرک کے برے انجام سے ڈراوے ہوتے، ایمان کے اچھے انجام کے وعدے ہوتے۔ پھر آپ ان سے سہیوگ کی اپیل کرتے۔ آپ کی خواہش تھی کہ قریش کی بدسلوکی سے چھٹکارا مل جائے تاکہ آزاد ہو کر دین کی دعوت دے سکیں اور رب کا بھیجا ہوا سندیش پہنچا سکیں۔ لیکن قریش اسے کیسے سہن کر سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دین پھیلاتے رہیں، لوگوں کا اسلام کی اور بلاتے رہیں؟ انہیں یہ بھی برداشت نہ ہوتا تھا آپ کے جانثاروں اور مددگاروں کی تعداد بڑھے کی۔ اسی لیے جب آپ کہیں جاتے تو ابو لہب یا دوسرے گنڈے پیچھے ہو لیتے، اور جب آپ کسی کو اسلام کی دعوت دیتے تو وہ ترنت آپ کی بات میں غلط ثابت کرنے کے لیے کہتے، بھائیوں یہ تو جھوٹا ہے، جادوگر ہے، خود بھڑکا ہوا ہے، اوروں کو بھی بھڑکاتا ہے، دیکھو اس کی باتوں میں ہرگز نہ آنا، اس کی ایک نہ سننا۔ یہ سن کر قافلے والوں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا اور منہ پھیر لیا۔ سینکڑوں انسانوں میں کچھ ہی تھے جنہوں نے آپ کی باتیں سنی اور قبول کی۔ انہی خوش قسمتوں میں طفیل دوسی بھی تھے۔ یہ بہت اونچے گھرانے کے شاعر تھے، بڑے ہوشیار اور عقلمند وقت تھے۔ جب یہ حج کرنے کے مقصد سے کعبہ آئے تو قریش نے کان بھر دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہنے کی تاکید کی۔ انہوں نے قریش کی باتوں پر یقین کر لیا اور طواف کرنے گئے تو اس اندیشے سے آپ نے کان بند کر لیے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کانوں میں پڑ نہ جائے۔ کعبہ کے نکٹ آئے تو اس سمے آپ
नमाज़ पढ़ रहे थे। तवाफ़ करते हुए आपके पास से गुज़र होता तो कानों में कोई ना कोई आयत पढ़ ही जाती। ये आयतें उन्हें बहुत भरी मालूम हुई। उन्होंने दिल में सोचा, उफ़, मेरा बेवकूफ़ी, मैं तो एक मशहूर शायर हूँ, अक्ल और समझ की दौलत से माला माल हूँ, बुरे भले में खूब अंतर कर सकता हूँ, फिर उसकी बातें मैं क्यों मानूँ, उसकी बातें मैं क्यों ना मानूँ और क्यों ना सुनूँ। अच्छी हुई तो ठीक है, वरना ठुकरा दूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर लौटने लगे तो वे भी साथ हो लिए। उन्होंने आपको पूरी दास्तान सुनाई। आपने उनको कुरान सुनाया। कुरान सुनाना था कि दिल पिघल गया। एक अजीब तरह की ठंडक और राहत उन्हें महसूस हुई। फिर आपने उनके सामने इस्लाम का पैगाम रखा। उन्होंने बड़ा साहस दिखाया, तुरंत इस्लाम कबूल कर लिया और कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे कबीले का दिल मेरे हाथ में है, हर एक मुझ पर जान देता है। कोई बात कहूँ तो उस पर अमल करना आप अपने ही लिए गर्व समझता है। जाता हूँ, उनको भी इस्लाम की दावत देता हूँ। वे लौट कर आए, घर वालों को दावत दी। सबको उन पर यकीन और भरोसा था। वे फ़ौरन तैयार हो गए और इस्लाम कबूल कर लिया। बाद में उनकी कौम भी मुसलमान हो गई। सारे अरब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चर्चा हो गई। ईसाइयों को मालूम हुआ तो उन्होंने छानबीन के लिए एक नुमाइंदा दल भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुरान की कुछ आयतें सुनाई। सुनते ही उनके दिल दहल गए और आंखों से आंसू आ गए। अब क्षण भर भी की देरी भी उन्हें पसंद न थी। वे तुरंत ईमान ले आए। जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उसे कबूल कर लिया और मुसलमान होकर वापस हुए। रास्ते में अबू जहल और कुछ कुरैशी मिले। देखते ही गुर्राए, अल्लाह तुम्हारा नाश करे। कौम ने भेजा था कि सच्चाई का पता लगाओ, सही बात मालूम करो, लेकिन तुम्हारा ये हाल, तुम तो बेपेदी के लूटे निकले। बैठे भी नहीं कि उनके जादू में आ गए। अरे, अपना धर्म भ्रष्ट कर बैठे। उन नुमाइंदों ने उनकी ओर कोई ध्यान न दिया। सब अनसुनी कर दी। ईमान की दौलत पाकर उनका दिल खुशी से भरा हुआ था। वे बेकरारी के साथ बढ़े चले जा रहे थे कि कौम को नए धर्म की मुबारक खबर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर सुनकर जो लोग इस्लाम की ओर आकर्षित हुए और फिर उससे मालामाल भी हुए, उनमें सामित के बेटे सुवैद रजी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं। ये मदीना के बाइज्जत लोगों में से थे। शायरी में बड़े माहिर थे। बहादुर में भी अपनी मिसाल आप थे। ख़ानदान की हैसियत से भी ऊंचा दर्जा रखते थे, इसलिए लोग इनको कामिल यानी परिपूर्ण कहते थे। ये भी हज करने के मकसद से मक्का आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो उनके पास गए। उनके सामने इस्लाम की शिक्षाएं रखीं और उन्हें खुदा की बंदगी की ओर बुलाया। सुवैद बोले, शायद जो मेरे पास है वही आपके पास भी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या है आपके पास? सुवैद ने कहा, हकीम लुकमान की हिकमतें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़रा कुछ सुनाइए। तो सुवैद को जितनी बातें मालूम थी सब सुना दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ध्यान से सुनते रहे। फिर फरमाया, ये तो बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन जो चीज़ मेरे पास है वह और भी बेहतर है। मेरे पास कुरान है, खुदा की आखिरी किताब। वह नूर और हिदायत की किताब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुरान सुनाया और इस्लाम कबूल करने की दावत दी। सुवैद तैयार हो गए और बोले, यह तो वास्तव में बहुत उत्तम है। फिर सुवैद मदीना वापस चले गए। उन्होंने जो कुछ सुना था दिमाग में महफूज था, उसे बार बार सोचते रहे। बाद में मुसलमान की हालत में शहीद हुए। किस्सा यह हुआ कि मदीना में यहूदी भी आबाद थे। ये लगाने बुझाने और चाले चलने में बड़े माहिर थे। इसी का करिश्मा था कि औस और खजरज कबीले एक दूसरे के दुश्मन हो गए। उनमें बड़े ज़ोर का युद्ध छिड़ गया। सुवैद रजी अल्लाह ताला अन्हु उसी में कत्ल हुए। मदीना से आकर जो लोग इस्लाम लाए उनमें अयास रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। ये मुआज के बेटे अभी बहुत ही कम उम्र थे। औस और अखरज में लड़ाई तो चल ही रही थी। हर एक ही यही कोशिश में था कि अरब के जितने कबीले
मिल सकें उनको अपना सहयोगी बना ले। इस तरह दूसरे पक्ष पर विजय प्राप्त कर लें। अतः औस के कुछ लोग आए कि कुरैश को अपना सहयोगी बनाएं। इन्हीं में अयास भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो उनके पास गए और उन्हें इस्लाम की ओर बुलाया। कुरान की कुछ आयतें सुनाई। अयास ने ये बातें सुनी तो बोले, अय मेरी कौम, खुदा की कसम, जिसके लिए आप लोग आए हैं उससे यह कहीं बेहतर है। अयास की कौम को तो लड़ाई की धुन थी और रात दिन इसी की फिक्र। काफिले का सरदार अबुल हैस था। उसने ज़मीन से कंकरियाँ उठाई और उनके मुंह पर मारते हुए बोला, चुप भी रह, हम कोई इसलिए थोड़े ही आए हैं। लेकिन अयास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी समय इस्लाम कबूल कर लिया। फिर कुछ ही दिन बीते और औस की अखरज में युद्ध की आग भड़क उठी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बहुत से कबीलों में गए, उनको इस्लाम की तरफ बुलाया, बड़ी दिल सोजी से मदद और सहयोग की अपील की, लेकिन लोगों के कानों पर जूं तक न रेंगी। हर एक ने सुनी अनसुनी कर दी। इसके कई सबब थे। किसी ने तो सोचा कि हमारा नगर हर एक को पसंद है, अगर मोहम्मद का साथ दिया तो डर है कि लोगों को नापसंद हो और फिर यहाँ आना जाना बंद हो जाए। कबीला सकीफ़ के लिए रुकावट यही बात थी। ताइफ की जलवायु बहुत अच्छी थी, हर एक को पसंद थी। अतः गर्मियाँ आती तो यहाँ रईसों की चहल पहल होती। सकीफ़ को खतरा था कि अगर मोहम्मद का साथ दिया तो वो ताइफ आना छोड़ देंगे। अरब का मशहूर बुत लात भी वहीं स्थापित था, जो तमाम लोगों की ज़ियारत का केंद्र था। ईमान लाने से उसके लिए भी खतरा था। कुछ कबीले ऐसे भी थे जिन्हें सरदारी की लालसा भी थी। कबीला बनु आमिर का यही हाल था। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हम इस्लाम तो कबूल कर लेंगे, परंतु आपके बाद सरदारी हम करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुकूमत और सरदारी अल्लाह के हाथ में है, जिसको चाहता है प्रदान करता है। यह सुना तो उन्होंने गर्दनें फेर लीं और कहा, हम तो आपके लिए गर्दनें कटवाएं और जब विजय प्राप्त हो जाए तो सरदारी दूसरे करें। जाइए, आपकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। किंदा, कल्ब, बनु हुनैफा, बनु मुज़र अरब के मशहूर कबीले थे। ये और उनके अलावा न जाने कितने कबीले थे। इन सब ने कानों पर हाथ धर ली। किसी ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद न की। वे कहते कि आदमी का हाल घर वाले ही ज़्यादा जानते हैं। अगर इसमें ज़रा भी भलाई होती तो घर वाले क्यों भगाते। इस तरह आपको हर जगह नाकामी हुई। किसी ने भी आपकी हिमायत न की। बहुतों ने तो बड़ी बेरहमी से सलूक किया और सख्ती के साथ इनकार कर दिया। अगर कुछ कबीले इंसानियत के साथ पेश भी आते और शराफत के साथ बातें सुनने के लिए तैयार भी होते तो अबू लहब आ पहुँचता, उनको आपके खिलाफ भड़काता और कहता, यह चाहता है कि तुम लात और उज्जा को छोड़ दो और उसकी फजूल बातों में फंस जाओ, तो देखो इसकी बातें हरगिज़ ना मानना, इसके धोखे में कभी ना आना। अबू लहब की बातें सुनकर वे लोग बिदक जाते और फिर उनके भी तेवर बिगड़ जाते। सदकल्लाहुल अज़ीम।